अधिक प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणम गुरम. Knowledge is the greatest adornment of a person, a hidden treasure that is always safe. It brings fame and happiness. Indeed, knowledge is the teacher of all teachers. Namaste and warm welcome to everyone joining us for this prestigious National Two-Day Seminar on Indian Knowledge System, Renaissance of Indian Culture, organized by Bharat Liberal Education Society, Shri Havgiswami Mahavidyalaya, Udgir. We are honored to extend a warm welcome to today's inaugurator, Honorable Professor Divya Joshi Madam, Director UGC MMTTC and Placement Cell, Kumaon University, Nainital, Uttarakhand. We are privileged to welcome esteemed keynote speaker, Honorable Professor Yogendra Singh Desai Sir, Pro Vice Chancellor, YCMOU, Nashik. We are honored to have scholars, experts, and eminent speakers gathered virtually to explore the depths of our ancient wisdom and knowledge. Today, we embark on a journey that bridges the past with the present, enhancing our understanding of the rich tapestry of Indian traditions. Before this momentous event, let us have a look at the glory of Indian knowledge tradition through this glorified song. संभृतं युक्ति संभृतं शक्ति संभृतं युक्ति संभृतं शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतं शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्. शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्. संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्. कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्. भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतम्. As we all know, Indian knowledge system has become an important part of curriculum almost in all the universities. As Ministry of Education and Department of Higher Education
has confirmed various Indian knowledge tradition centers in private sectors across the country. It promotes Indian systems of knowledge to actively engage in the research and spread the rich heritage of our country in the fields like philosophy, art, science, technology, management, economics, sports, agriculture, and so on. Its purpose is to preserve and disseminate its Indian knowledge system for further research and societal applications. Indian knowledge system studies enable us to look at past culture, its glory, and to learn and solve current issues of India and the world. As T.S. Eliot once said in his book Tradition and Individual Talent, that it is necessary to learn from past, connecting it to the individual talent. So we are now going to revive our past culture, past knowledge tradition. So we are on the path of reviving once again our knowledge tradition encompassing rich heritage of knowledge that covers various domains. Vedic mathematics, Arthashastra, astronomy, yoga, Ayurveda, such topics will be included in UG courses of various streams. Indian knowledge system is most emerging area of study and research. The timeless wisdom resonates like cosmic symphony. We all are going to dive deep into Indian knowledge system as we have with us the most brilliant minds in this field today. We are honored to have distinguished panel of experts with us today to discuss on Indian knowledge system. So now I request Honorable Dr. Gore sir for introductory speech. It gives me an immense pleasure to mention that Dr. Gore sir, HOD of English and IQAC coordinator of our college, has a rich study on this topic, and his one book on IKS is going to be published. And one more thing that I would like to mention here, that Padma Bhushan awardee, former Pro Vice Chancellor Professor Kapil Kapoor from JNU, he's going to write forward to his book. And one more, our staff member, Dr. Ulgade sir, is also working on Indian knowledge system book. I request Dr. Gore sir to please present your introductory speech here, sir. Dr. Gore sir. Thank you very much, ma'am. A warm good morning to one and all here. First of all, I welcome you all to the inaugural session of the two-day online national seminar on Indian knowledge system, Renaissance of Indian culture, organized by Sri Haugiswamy College, Udgir. Respected Chairman, Professor N.G. Emekar sir, in charge principal, Sri Haugiswamy College, Udgir, inaugurator of the session, Honorable Professor Divya Joshi ma'am, Director, UGC, MMTTC, Kumaon University, Nainital. Keynote addressee, Honorable Professor Jogendra Singh Bisen sir, Pro Vice Chancellor, YCMOU, Nashik, and all the respected chairpersons of various sessions, resource persons, paper presenters, and all my dear participants of this event. As you know very well that India, a land of numerous cultures, languages, and traditions, actually stands as a beacon of ancient wisdom that has illuminated the paths of seekers and scholars for millenniums together. This seminar on Indian knowledge system, Renaissance of Indian culture, will definitely make an effort to unveil the profound intellectual heritage that has shaped India's identity and continues to resonate in global discourse today. The genesis of this seminar lies in a deep-rooted fascination with India's rich tapestry of knowledge. It is a tribute to the enduring intellectual legacy that spans from the ancient Vedic texts to the modern interpretations of Indian philosophy, science, and spirituality as well. As we embark on this journey through time, it becomes evident that
India's contribution to human knowledge transcends mere historical chronicles. It also embodies a living tradition that involves and adapts, yet remains anchored in its philosophical underpinning. At the heart of this exploration are the foundational texts that form the bedrock of Indian ideology and Indian thought process. The Vedas, the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, more particularly the Bhagavad Gita, and other Indian philosophies and the treatises of ancient Indian sages and scholars. These texts not only articulate profound metaphysical insight, but also serve as guides to ethical living, scientific inquiry, and spiritual realization. They represent a holistic worldview that integrates the material and spiritual, empirical and metaphysical, offering a comprehensive framework for understanding existence of the cosmos. Central to the narrative are the philosophical systems that have flourished in India over the centuries together. From the rationalistic approaches of Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, and Virashaivism to the profound metaphysics and different schools of thoughts which have contributed immensely and uniquely in order to create different perspectives of life. Through rigorous debate and dialectical reasoning, these philosophies have enriched intellectual discourse of Indian ethos and provided enduring answers to remains remarkably relevant in the world today. Ayurveda, with its emphasis on balance and harmony, offers a comprehensive system of medicine that integrates diet, herbal remedies, and lifestyle practices to promote physical and mental well-being. Similarly, yoga, through its practices of asanas, pranayamas, and meditation, provide pathways to spiritual growth and inner self-glorification and transformation. To mark this event, I congratulate the organizing committee for making constructive efforts to bring this seminar into reality. I also congratulate all the esteemed chairmen of different sessions, resource persons, scholars, paper presenters, and participants who have actively contributed in order to make this event successful. As we embark on this journey together, may this seminar illuminate the richness of India's knowledge tradition and inspire a deeper appreciation for the timeless wisdom embedded within its cultural fabric. With these words, I take your leave. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this very much comprehensive introductory speech. Professor Divya Joshi, Madam, inaugurator of this seminar, to inaugurate this session with her words of wisdom. Professor Divya Joshi, Madam. It's my privilege to introduce Professor Divya Joshi, Madam. Before her speech, let me introduce her. Divya Upadhyaya Joshi is at present Professor Director of UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Kumaon University, Nainital, Uttarakhand, where she has worked since 2007. She is also Director Placement Cell of Kumaon University. She has extensive administrative experience. She is ex-Director Development and Planning, ex-Joint Director IQAC, ex-Director of Women's Studies Center, ex-Director of Vivekananda Peeth of Kumaon University. Her educational qualifications include a Master of Arts
and a PhD in political science, where her areas of specialization is gender studies. With a teaching and research experience of 20 years, she has over 50 research publications, numerous research presentations in conferences in India and abroad. Her major publication is edited volume on Spaces and Gender in Asia, Springer International Publishing. She works and lives in Nainital, a mountain person who includes painting and reading. So we all are very much eager to listen to you, ma'am. So it gives me an immense pleasure and privilege to invite to you, ma'am. Thank you very much, Jyoti. Thank you. So, thank you for inviting me and inviting me to speak, and also for your very kind introduction. Namaskar, everyone. My greetings and greetings from UGC Malviya Mission Teachers Training Center, Kumaon University. आप सभी का मैं अभिनंदन, नमस्कार आप सबको कुमाऊं विश्वविद्यालय की तरफ से भी, जहां का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ. So, Namaskar, Professor N.G. Yemkar, Principal of Haviswami Mahavidyalaya, Udikir, and in absentia to the keynote speaker, Professor Jogendra Singh Bisenji. So, addressing the chairperson, Professor N.G. Yemkar, Principal, Haviswami Mahavidyalaya, Udikir. In absentia, the very respected keynote speaker, Professor Jogendra Singh Bisenji, Pro Vice Chancellor, YCMOB, Nashik. And of course, the organizers of this wonderful seminar. I know that the Vice Principal, Dr. Kalgapuri, is here, so addressing him, and the organizing secretary and others in the team. I know Jyoti Sampale, who has been in touch with me. So Jyoti, thank you. Very efficient communication from Jyoti coming in continuously. Dear participants, ladies and gentlemen, I think there are a lot of students here. So dear students, I'm delighted to be here for this national seminar with all of you in Udgir. Look at the wonders of modern technology. I am sitting in New Delhi. Today I'm addressing you from New Delhi, where I had come for some work. And we are able to transcend these geographic distances and spaces and be together in this virtual seminar room. So I greet all of you who are present in this virtual room with me. When Jyoti approached me first, she said, asked me to speak on the topic of the seminar, that is Indian Knowledge Systems, Renaissance of Indian Culture. And I admitted frankly to Jyoti that, Jyoti, I'm no great scholar of this issue. But yes, I am very familiar with the broad dimensions and also with what is the National Education Policy 2020 is saying about it. Because in my capacity as director of UGC MMTTC, we have been involved at various stages with UGC in planning, in implementing aspects of IKS in our higher education institutions. तो इसलिए मैंने ज्योति जी से ये क्या कहते हैं एक एडमिशन या एक बात कही थी कि मैं कोई विषय की बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं हूं, परंतु मैं संवाद की शुरुआत करने का अगर आप कहेंगी तो ये तो एक बहुत ही शुभ कार्य है। और मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं कि जो आज आप ये 2 दिन का यज्ञ करने जा रहे हैं, ज्ञान का यज्ञ, और वो भी एक इतने सार्थक विषय पर, उसमें एक शुरू में आहुति डालने में अगर आप मेरे को भी आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं सहर्ष इसको स्वीकार करती हूँ। तो आपके विद्यालय ने, श्री हविस्वामी महाविद्यालय उदगीर ने जो ये बहुत ही अद्भुत पहल की है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी करी है, उसके लिए मैं आप सभी को, आपके जो प्रिंसिपल हैं उनको, और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जो भी इसके आयोजन में सम्मिलित थे, आप सभी को मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आपका यह जो ज्ञान यज्ञ है यह सफल हो, सुफल हो। So I wish you the very best that this 2-day intellectual exercise that you're going to take, it should be a very intense exercise, a very rigorous one, and a very fruitful one. Rigorous intellectual exercise means that I hope that the students will also participate equally by asking questions, by being curious, by cross-examining the speakers, and you will be passionately involved from day 1 to the last day, all through.
क्योंकि कई बार हम एक ये कमी देखते हैं कि हम भी बहुत सेमिनार्स का आयोजन करते हैं, पर ये कमी हमें खुद महसूस होती है। एक आभास होता है कि कई बार शुरू का सत्र हम बड़ी जोरों शोरों से करते हैं और अंतिम सत्र भी, पर बीच में हमारे कई प्रतिभागी जो हैं वो जो कुछ कहते हैं ना भगोड़े हो जाते हैं। अब अगर फिजिकली प्रेजेंट भी है तो उनका मन भटकने लगता है विषय से, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ऑर्गेनाइजर्स इतने एफिशिएंट हैं, इतने कुशल हैं कि ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज जिससे कि मुझे बड़ी ही एक हर्ष भी हुआ और बहुत ही मैं उत्साहित भी हुई, ये था कि आपके महाविद्यालय में ही कई बहुत ही अच्छे विद्वान इस विषय विशेष के हैं। You have some excellent resource persons and scholars within your college of this particular domain. So जैसा कि ज्योति ने भी कहा और डॉक्टर गोरे को हमने सुना, I'm absolutely delighted. I had the opportunity to look at his book. I will not lie and say that I have read it in detail. And book का जो title है, the शीर्षक है A Glimpse of India, of the Indian Knowledge Tradition, Cognizance of Continuity. और हमने देखा इसमें बहुत ही वृहद जो है उन्होंने हमें परिदृश्य, what we call a very comprehensive overview of all that constitutes the Indian knowledge traditions. And what is good is he has used the word tradition here. आप टाइटल में ही देखेंगे Indian knowledge tradition. इस पर थोड़ा बहुत ही संक्षेप में मैं बात करूंगी. What really kind of drew my attention and fascinated me was the second part of his title, the cognizance of continuity. यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं देख रही हूँ सभागार में स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जरा इन शब्दों पर विचार करिए. cognizance of continuity, इसका अर्थ होता है हमें संज्ञान लेना है. किस चीज का लेना है? जो सतत परंपराएं चलती आ रही हैं, निरंतरता है, जो सतत प्रकार से परंपरा है, उस पर का संज्ञान लेना है. Jyoti ma'am also introduced that I think the big stamp of approval comes from Dr. Kapil Kapoor, Professor Kapil Kapoor, जो हमारे यहाँ छात्र हैं जो नहीं जानते, भारत के दिग्गज विद्वानों में से, I don't know मराठी में शब्द है कि नहीं, दिग्गज विद्वानों में से एक बहुत, इसको कहते हैं पुरोधा है. He is like a father figure in Indian academics. एक आधार भारतीय ज्ञान परंपरा का, आधुनिक ज्ञान परंपरा का प्रोफेसर कपिल कपूर, पद्म भूषण अवार्डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इंग्लिश पढ़ाते थे, बट उन्होंने संस्कृत का भी बहुत अध्ययन किया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, और उन्होंने भारतीय ज्ञान, प्राचीन भारतीय ज्ञान और जो परंपराएं हैं, द कंटिन्यूइंग ट्रेडिशंस, उन पर उनका बहुत बढ़िया काम है. और जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगी कि अब तो इतने OER क्या होते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो आप लोगों को उन पर जाना चाहिए. यूट्यूब, आप लोग यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब तो सारे हमारे विद्यार्थी जानते हैं. यूट्यूब पर जाकर के कभी प्रोफेसर कपिल कपूर गूगल करिएगा, सर्च करिएगा, उनके बहुत बढ़िया लेक्चर्स, संबोधन आपको मिलेंगे, बहुत गहन ज्ञान उनमें है. उन्होंने डॉक्टर विट्ठल गोरे की पुस्तक का फॉरवर्ड दिया है और बहुत ही यह एक बढ़िया, एक उत्कृष्ट प्रयास है डॉक्टर गोरे की तरफ से. संबोधन है, परंतु हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में के बारे में बहुत ज्ञान तप से आता है, यह ऋषि परंपरा है. तो मुझे बहुत खुशी है कि आप इस ऋषि परंपरा में एक सूत्रधार बन रहे हैं, कड़ी बन रहे हैं. आप जैसे ऋषियों की हमें आवश्यकता है. और ये कहीं मैं एक दिन सुन रही थी, किसको सुना था अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कि ये ऋषियों के द्वारा दी गई परंपरा है और इस परंपरा के निर्वहन के लिए और इसको आगे ले जाने के लिए ऋषियों की आवश्यकता है. हमको ऋषि बनना पड़ेगा. इसलिए यहाँ जितने भी शिक्षक आज इस सभागार में उपस्थित हैं, इस आभासीय सभागार में, और जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं, PhD स्कॉलर्स इत्यादि हैं, ये शब्द याद रखिएगा. डॉक्टर गोरे को एक उदाहरण के रूप में अपने सामने, आदर्श उदाहरण के रूप में देखिए. ऋषियों की परंपरा है और ऋषि ही इसका निर्वहन करेंगे, ऋषि ही इसको आगे ले जाएंगे.
तो हम सबको ऋषि बनना है, इस पर बहुत संक्षेप में फिर बात करेंगे। तो आप सबको मैं बधाई भी देती हूँ, और आपने मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक बड़ा काम दे दिया। मैं एक साधारण आपकी जैसी ही शिक्षक हूँ, परंतु हाँ, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करने वालों में से, प्रारंभिक आहुति देने वालों में से, सम्मिलित आहुति है हम सबकी। आज जितने हम लोग बैठे, उद्घाटन मैं नहीं कर रही हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, इतनी बड़ी मेरी शख्सियत नहीं है कि मैं उद्घाटन करने का बड़ा काम कर पाऊं, परंतु हाँ, प्रथम सम्मिलित आहुति में मैं भी अपना हाथ लगाती हूँ, आहुति देती हूँ। मेरी ये मनोकामना भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एनसीसी गर्ल्स के लिए, गर्ल तो उस टाइम पर गर्ल गाइड्स होता था, एनसी तो हम कहते हैं स्काउट्स एंड गाइड्स हुआ करते थे। कभी 1920 के दशक में उन्होंने एक बंगाल का चैप्टर था, कोलकाता चैप्टर, उसमें बंगाली में एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा था, जिसमें कि वो दीप की ज्योति का आवाहन करते हैं और उसको ज्ञान की ज्योति, कल्याण की ज्योति के साथ जोड़ते हैं। उसमें कहते हैं एशो एशो आलो, किसको बुला रहे हैं? ज्ञान की ज्योति को। एशो बंगाली में होता आओ, आओ आओ, दीप दीप की ज्योति आओ। यहाँ पर दीप तो हम लोग वर्चुअली, मैं ये चाहूंगी कि हमें माने कि हमने अभी ज्ञान की का जो ये हवन है, जो ये यज्ञ है, इसको शुरू किया है और हम इसको प्रज्वलित कर रहे हैं उस ज्योति से जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 प्रोबेबली में आह्वान करते हैं कि एशो एशो आलो। वो कहते हैं आओ आओ, हमारी इस दुनिया को जो है प्रदीप्त करो, इसमें दीप्तिमान करो। तो यही मेरी आप सबके लिए आशा है, आपका ये यज्ञ सफल और सुफल होगा। एक तो मैंने जब शेड्यूल देख रही थी तो मैंने देखा कि ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ बहुत अच्छे स्पीकर्स बुलाए हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से प्रोफेसर रामनाथ झा, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो मैं ये धृष्टता नहीं करूंगी कि मैं यहाँ आपको कुछ वो सब ज्ञान देने की कोशिश करूं जिस पर कि वो मुझसे बहुत ज्यादा पारंगत हैं, जिसका काम उसी को छाजे। तो मेरा ऐसा है कि मेरे को इतना इस पर कोई गहन संस्कृत का ज्ञान इत्यादि नहीं है, परंतु कुछ जो ब्रॉड पॉइंटर्स हैं। एक तो सबसे पहले आज कर क्यों रहे हैं हम ये सेमिनार, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं और पिछले 2-3 साल में ये हमारे जो विद्यार्थी हैं ये बार बार सुन रहे होंगे कि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो कई बार हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि क्यों बार बार इतनी बात हो रही है, ऐसा नया क्या है। और कुछ क्रिटिक, कुछ आलोचनाएं भी उठी हैं कि क्या ये जो नया जो फोकस है, जो ये नया ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्या ये कुछ गलत है। इसको लेके कुछ ऐसे विवाद भी हुए हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनः एक उत्थान पर कुछ विवाद। क्योंकि देखिए, कोई भी नई बात उठती है तो उस पर विवाद करने वाले 10 आलोचक हमेशा आ जाते हैं। ये तो मनुष्य प्रकृति है और समाज की भी प्रकृति है कि कोई भी नया काम शुरू होता है तो आलोचक और उसके विध्वंसक हमेशा आ जाते हैं। परंतु हमारे कम से कम जो यहाँ छात्र या जो हमारी जूनियर्स हैं, उनके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि ये विवाद आवश्यक अनावश्यक क्या है। हम एक संवाद के लिए भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम ज्ञानार्जन के लिए यहाँ हैं। वी आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम द ग्रेट स्कॉलर्स हु विल स्पीक हियर। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू many very good national level scholars are coming, but we are also here to examine some crucial questions regarding this topic. Like, there's been a critique गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, एनईपी में इसको क्यों हिस्सा बनाया गया है, why are we talking so much about the Indian knowledge system। तो जो नए हैं यहाँ के बच्चे, we know, एक तो पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि देखिए, पहली बार जो स्वतंत्रोत्तर भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया, नियरली आफ्टर 75-80 years now, the span, we are seeing for the first time there is this renaissance of Indian knowledge systems। आपकी संगोष्ठी में भी ये शब्द आ रहा है, renaissance, पुनर्जागरण, पुनर्जीवित करना ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये इंडियन नॉलेज कल्चर, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, तो ये क्यों हुआ? इसलिए इस रेनेसां की, इस पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि कई पीढ़ियों तक पिछले 200 साल में कई पीढ़ियों तक, करीबन 200 साल तक हमारे यहाँ आम जनमानस में, आम आदमी के मन में
और अधिकतर जनसंख्या के मन में यह भ्रांति थी, देयर वाज अ मिसकंसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन दैट knowledge is what the British have taught us. Knowledge is Western. There was no knowledge in India before the British. भारत कुछ था, वेद थे, कुछ ऐसा हमारे दिमाग में। जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मैं उम्र में शायद आप सबसे बहुत बड़ी होंगी, 1970 के दशक में मैंने स्कूल जाना शुरू किया। आई स्टार्टेड स्कूल इन 1970s एंड व्हेन वी वर इन स्कूल, हमारे स्कूलों में हमने कभी ये भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द सुना ही नहीं था। कुछ हाँ वेद होते हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता था, देयर वर 4 वेदास, देयर वर उपनिषद्स, वहां पर खत्म हो जाता था। ऐसा लगता था कि नॉलेज तो वो है, ज्ञान वो है जो पश्चिम से आया है, whatever is Western is knowledge. And there was no knowledge before the British. It seemed that systemized education, systematic knowledge came only with the British, and that we need to be greatly indebted to them. उनका हमें कोटि कोटि आभार मांगना है कि उन्होंने हमें ज्ञानवान बनाया, हमारे यहाँ शिक्षा लाए। उनके पहले तो हम अशिक्षित मूढ़ गवार थे। बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश वी वर लाइक सम बैंड ऑफ क्रेजी जंगलीज, ऐसा लगता था अधिकतर लोगों को। जो बड़े विद्वान थे, जो पठित थे, उनके मन में हाँ प्रश्न थे कि क्यों ऐसा हम सोचते हैं। आपको 1835 में हम जानते हैं कि पहली बार हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ने जो था, ब्रिटिश ने एक शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम उनकी सरकार थी। उन्होंने थॉमस बैबिंगटन मैकॉले नाम के एक व्यक्ति को चेयरमैन बनाया। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आई थी, और मैकॉलेज मिनट्स हम कहते हैं, और उसको या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835। और उसके कोई अनोखा पक्ष देखिए, उसमें क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ाओगे आप, इंग्लिश में पढ़ाओगे। फोकस ऑन वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी विज्ञान, पश्चिमी साहित्य पढ़ाया जाएगा। ज्यादा स्कूल बनाएंगे जाएंगे, बट इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स होंगी, टेक्स्ट बुक्स विल बी इन इंग्लिश। देन फंडिंग, इंग्लिश एजुकेशन वाज टू बी गिवन मोर फंड्स देन indigenous or vernacular education. Printing, इंग्लिश किताबें सस्ते में छापी जाएंगी। इस तरह से और चीजें भी थी। तो इससे क्या बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, द ब्रिटिश आर ट्राइंग टू वाइप आउट, वो खत्म करना चाहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को। हम नहीं समझ पाए उस समय, भारतीय जन मानस जो था इस बात के प्रति जागरूक नहीं हो पाया। हम उसी बहाव में आ गए उनके शासन में। परंतु इससे क्या हुआ, करीब 200 साल तक, for nearly 200 years or more than 150 years, we were generation upon generation of Indians were misled into thinking that knowledge is Western. We are very grateful to the English for having educated us. अंग्रेजों ने हमें ज्ञानवान पढ़ा लिखा बनाया, हम तो गंवार थे। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति थी। इससे हमारी अपनी पहचान, द इंडियन आइडेंटिटी वाज डाइल्यूटेड। और यही तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत की पहचान, भारतीयों की पहचान खत्म हो जाए, जिससे कि वो खड़े ना हो पाए अपने पैरों पर, राइट। सो दिस हैपेंड फॉर अस। और इससे हम में क्या, एक हीन भावना आई। भारतीयों को अंग्रेज कैसे ट्रीट करते थे, नेटिव्स, हम यहाँ के मूल निवासी, हम मूढ़ गवार थे। वो चाहते थे हम में हीन भावना आए, और वह हीन भावना हम में आई, और हम किससे कट गए, अपनी जड़ों से कट गए। वी कट ऑफ फ्रॉम आवर रूट्स। तो इसीलिए जो आपके ऑर्गेनाइजर्स ने रेनेसांस शब्द यूज किया है बहुत एप्ट है, क्योंकि पुनर्जागरण की आवश्यकता है। एंड सैडली भारत की स्वतंत्रता के बाद भी करीब 75 साल तक हमारी सरकारें, हमारे प्रशासक इस बात के लिए नहीं जागे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का पुनर्जागरण आवश्यक है, that we need to revive this system, right? And initiatives like that by your college, this national seminar, are very crucial. Now, the next point, there are many, misunderstandings कि Indian knowledge है, right? Indian knowledge, actually, it is not a static, fixed body of knowledge. ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड कॉर्पस है। हम कहते हैं IKS कॉर्पस, इंडियन नॉलेज कॉर्पस। ऐसा नहीं है कि 425 किताबें हैं और वो फिक्स्ड है, एक किताबों का बंडल है और वो भारतीय ज्ञान में है।
नहीं, हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं। जो गोरे साहब ने ट्रेडिशन शब्द का यूज किया है, हम परंपरा की बात करते हैं। तो ये हमारा अब काम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर बहुत फोकस करती है, पर अब आपको और मेरे को, हम सबको सम्मिलित रूप से क्या करना है भारतीय ज्ञान के पुनर्जागरण के लिए? तो क्या हमें पुराने ज्ञान को परोसना है कि भाई ढूंढो मैथ्स में क्या था, लाओ बच्चों को सिखा दो, किताब बनाओ, बच्चों को पढ़ा दो? पुराने ज्ञान को परोसना नहीं है, उसको सम्मिलित करना है। और हमारी यूजीसी के जो माननीय चेयरपर्सन है प्रोफेसर मामी डाला, उनका मैं कहीं सुन रही थी, वो कह रहे थे एवरी स्टेज, एवरी सब्जेक्ट वी हैव टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल नॉलेज। पुराने ज्ञान को प्राइमरी से लेके अब 5+3+3+3 में, शुरू में तो ये अनिवार्य होगा, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा हर स्टेज पर, प्राइमरी के बच्चे को भी और रिसर्च स्कॉलर को भी, एमएससी के स्टूडेंट को भी और क्लास 2 के बच्चे को भी। एट एवरी स्टेज आपने भारतीय ज्ञान को सम्मिलित करना है, छोटी छोटी डोजेस बढ़ानी है, डोज बढ़ानी है, छोटे बच्चे को कम, और फिर बढ़ते 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 वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट। तो पुराना बट सिर्फ उसको परोस के नहीं होगा, हमें पुरानी जो दृष्टि थी, वी हैव टू लुक एट द पर्सपेक्टिव्स, द इनसाइट्स, दृष्टिकोण, द वे वी लुक एट थिंग्स, आवर अप्रोच, जिसको हम कहते हैं उपागम, उद्गम approaches, philosophical approaches, methodological approaches, pedagogical approaches। ठीक है, डॉक्टर गोरे ने मेटाफिजिकल शब्द यूज किया था, थोड़ा सा बच्चों के लिए जटिल हो जाता भी मेटाफिजिक्स का, इसलिए नहीं करूंगी। मैं कहूंगी पढ़ाने के तरीके, शोध करने के तरीके, और सोचने समझने विश्वास करने के तरीके, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को समझना। सबसे बड़ी बात तो है कि अपने को पहचानना, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरी सांस्कृतिक पहचान क्या है, मेरी क्षेत्रीय पहचान क्या है, मेरी सामाजिक पहचान, इन सब में जोड़ना है अपने ज्ञान को हमने। तो पुरातन दृष्टि को, जीवन दृष्टि को जो है, हमें इसको युगानुकूल करना है। वी हैव टू टेक आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, वी हैव टू रीडिफाइन इट, वी हैव टू री-एग्जामिन इट, एंड देन integrated into our contemporary knowledge systems, into our classroom teaching, into our research laboratories, into our policy frameworks, into our administrative approaches। तो हर जगह इसको इंटीग्रेट करना है, हर कोने कोने में, उच्च शिक्षा व्यवस्था के हर कोने कोने में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का समावेश होना है। इट इज टू बी इंक्लूडेड एट ऑल थिंग्स। कैसे? सिर्फ ज्ञान के भंडार के रूप में नहीं, परंतु इसको हमने एक अप्रोच के रूप में, एक दृष्टिकोण के रूप में देखना है। ठीक है, तो हमने उसी पर जाके अटक नहीं जाना है कि वेद में क्या लिखा था बस उसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्या है, ये परंपरा शब्द है, और परंपरा इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ट्रेडिशंस आर कंटिन्यूइंग प्रोसेसेस, दे आर डायनेमिक, दे आर नॉट स्टैटिक। वो एक जगह जमा पानी की तरह नहीं है कि एक तालाब है उसमें जमा पानी है, ये तो एक बहती हुई नदी है। हमारी ज्ञान परंपरा एक बहती हुई नदी है जिसमें चलते जाना है। तो हम इस नदी का ही हिस्सा है, हम तो एक पड़ाव हैं, हमसे बहुत पहले से, हजारों साल पहले से नदी बह रही है। आप आज और मैं उस नदी को देख रहे हैं, पर आपके और मेरे चले जाने के बाद वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो चलती रहेगी, आगे 1000 साल भी चलेगी। भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी गहरी, इतनी सबल, it is such a deep, such a strong tradition that it won't end with the going away of maybe in 100 years. I won't be alive, you might not be alive, but then it won't stop with us, it will continue. So the continuity, goes ahead. So intergenerational transfer हो रहा है, पीढ़ीगत जो है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ एक शब्द जुड़ जाता है संस्कार का। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारी जो परंपरा है ये एक संस्कार रूप में है। लाइक आई सेड, इट्स अ रिवर ऑफ ट्रेडिशन, ऑफ नॉलेज ट्रेडिशंस, और एक संस्कार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी गई है। बड़े कुछ इस पर इंटरेस्टिंग 1-2 बार मैंने कहीं लेक्चर सुने कि देखिए इतना कुछ हुआ है बीच में। प्राचीन भारत के बाद हमारे यहाँ विदेशी शासक आए,
ठीक है, एंड वी नो दैट वी एट द मिडीवल पीरियड, मध्यकालीन युग में कई अत्याचार हुए, जो विदेशी थे उन्होंने हमारी ज्ञान परंपराओं को खत्म करने के अनेकों प्रयास भी किए, परंतु आज भी हमारी ज्ञान परंपरा उस सब के बावजूद जीवित है। क्यों है? क्योंकि संस्कार आगे बढ़ी है। इसीलिए डॉक्टर विट्ठल गोरे की पुस्तक के जो शब्द है, कॉग्निसेंस ऑफ कंटिन्यूटी, संज्ञान ले इसकी सततता का, ये सतत चलने वाली परंपरा है इस बात का। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता है किसने, जब मध्यकाल में या ब्रिटिश टाइम में जब हमारी परंपरा के लिए कोई भी स्कूल नहीं, गुरुकुल खत्म हो चुके थे, स्कूल नहीं थे, ऋषि लोग नहीं थे, किसने इसको आगे बढ़ाया? इसको आगे बढ़ाया परिवारों ने, जो हमारी छोटे समुदाय हैं उन्होंने। और सबसे बड़े संरक्षक कौन थे? माता पिता। जब घरों में माता पिता ने अपनी दैनिक वंदना में मंत्र बोले, वो मंत्र चाहे कई बार वैदिक मंत्रों के करप्टेड फॉर्म्स थे, भ्रष्ट रूप थे, परंतु वो ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी। हमारे घरों में जो दैनिक पूजा होती रही, जो खान पान के तरीके रहे, जो न्यूट्रिशनल नॉलेज आगे बढ़ी, जो हमारे दैनिक कर्म थे उनके तो इन सब के द्वारा माता पिता, परिवार के बड़े, वो सबसे बड़े गुरु बने। पिता ने गुरु का स्थान लिया, माता ने गुरु का स्थान लिया। और मैं एक दिन आप जो परम श्रद्धेय बहुत बड़े विद्वान भी और अच्छे वक्ता श्रीमान मुकुल कानितकर जी को सुन रही थी, और उनके एक भाषण में मैंने सुना कि महाराष्ट्र में एक अनोखी चीज है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज को माँ संबोधित किया था। क्यों? बिकॉज वो एक ज्ञान की धारा को आगे प्रवाहित करने में और इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज में सबसे बड़ा रोल शायद हमारी जननी का होता है। तो इस बात पर ध्यान देते हुए, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इसको लेकर के। आईकेएस कॉर्पस बहुत बड़ा है, अभी आगे चल के हमारे की नोट स्पीकर आपको बताएंगे। यूनिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो ज्ञान भंडार कॉर्पस है, इट इज यूनिक इन इट्स नेचर एंड इट्स साइज। बहुत क्लासिफिकेशंस है, मैं नहीं जाऊंगी, लिटरेरी, नॉन लिटरेरी, फिर सनातन धर्म से जुड़े हुए अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस, अभी गोरे साहब ने भी कुछ कहा, आई वोंट गो देयर। एंटिक्विटी बहुत है, बहुत पुराना है। हमारा रिएक्शन इसके लिए क्या है, बहुत जरूरी। आज जो संवाद हमने शुरू करना है, ज्ञानार्जन तो आपका होगा ही, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम द स्पीकर्स, बट वी हैव टू स्टार्ट अ डिस्कोर्स इन अ डायलॉग ऑन आवर रिएक्शन टू द कॉर्पस। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे आपके यहाँ घर में, माँ पिता जी लोग अगर पूजा करते हैं गीता को, कई बार कई पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी पूजा की पुस्तकों को रख करके, रामायण को उसके ऊपर फूल वूल चढ़ा के पूजा करके घंटी बजा देते हैं, परंतु कई पीढ़ियों ने कभी उसको खोल के नहीं पढ़ा, गीता की पूजा करी पर खोल के नहीं पढ़ा। आपके लिए, मेरे लिए, हम लोग जो आज उच्च शिक्षा में है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम ये जो पुराना कॉर्पस है, मैं सिर्फ गीता की बात नहीं कर रही हूँ, वट एवर द आईकेएस कॉर्पस इज, इट इज ऑन एस्ट्रोनॉमी, इट इज ऑन मेटलर्जी, इट इज ऑन सर्जरी, इट इज ऑन नेम इट एंड इट्स देयर, इट्स ऑन मैथमेटिक्स, इतना कुछ है। खोलने, विस्तार से पढ़े, गहराई से पढ़े, पूजा करना बंद करें। सिर्फ वेनरेशन काफी नहीं है, उसकी पूजा करके नहीं, उसको पढ़ के, उसको समझ के, तब उसके एप्लीकेशंस तक हम लोग पहुंच पाएंगे। फिलोसॉफिकल बेसिस की बात करी, मुझे लगता है सर भी आगे बात करेंगे। अनेक को हमारे कहा जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने। और सबसे अनोखी बात मैं कहूंगी, विवेकानंद और श्री अरबिंदो, इनका नाम तो हम लेते ही हैं। लुक एट गांधी, हाउ स्मार्टली वी ऑफन से दैट गांधी की जो लीडरशिप थी बड़ी अनोखी थी। उन्होंने एक लिमिटेड नेशनल मूवमेंट को एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया, एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया। और उन्होंने जो कुछ फॉर्मूला उठाए, उनकी हिंद स्वराज पुस्तक ही आप देखिए, उनकी राइटिंग्स को देखिए, सत्य, अहिंसा, धर्म, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स के ही हैं। ये ऐसा नहीं कि नई जगह से आए हैं, ये वो पुरानी ही चीजें हैं जो गांधी जी ने क्या उठाया था? सत्य को उठाया, अल्टीमेट नॉलेज। और धर्म क्या है? अल्टीमेट नॉलेज का एप्लीकेशन है। उसको जब हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, मानव जीवन के अलग अलग जो चरण है, उसमें धर्म का जब अनुपालन होता है, वो सत्य। सत्य क्या है? अल्टीमेट नॉलेज। गांधी ने वहीं से टर्मिनोलॉजी ली थी, ठीक है। और इसके आगे चल के आई एम श्योर द ऑनरेबल स्पीकर्स विल गो ऑन टू दिस।
गोरे जी ने भी बात करी, लंबा ट्रेडिशन है। कपिल कपूर जी को जरूर सुनिए, पढ़िए, गोरे जी की पुस्तक का फॉरवर्ड उन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बात है। ऋग्वेद से यात्रा शुरू होती है, एक अनोखी पुस्तक, यूनेस्को ने उसको एक हेरिटेज माना है। वहां से लेकर के तमिल संगम लिटरेचर तक की यात्रा है, जहां भक्ति का जन्म होता है, भक्ति का, और वहां से पुनः लौट के वह भक्ति आंदोलन पूरे अंडाल की जो हम देखते हैं रचनाएं हैं, संगम आप जानते हैं, मैं ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, लौट करके कैसे भारत में अलग अलग रूपों में ये भक्ति का ट्रेडिशन, इसमें भी पारंपरिक ज्ञान ही था। तो जो भारतीय ज्ञान, एंड नेवर फॉरगेट द पेगन, जिसको जो पेगन कहते हैं, जो स्थानीय थे। तो यूजीसी ने बहुत कुछ किया है भारतीय ज्ञान परंपरा को, और हिंदू स्टडीज को भी इंट्रोड्यूस किया है। कहीं कहीं पर विवाद उठे हैं, बहुत चर्चा है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इस सेमिनार का इतना महत्व है। मेरी आशा है इसमें प्रतिभाग करने वाले, जो उनके मन में शंका आशंका है और कुछ भविष्य में कैसे किया जाएगा चुनौतियां हैं, उनके बारे में सम्मानित जो विद्वान यहाँ आएंगे उनसे प्रश्न करेंगे। सफल सुफल संवाद यहाँ आरंभ होगा, जिससे कि हम सब मिलके आगे चल के, यूजीसी के शब्द हैं, एनईपी में शब्द आता है एक्यूरेट एंड साइंटिफिक मैनर, हमें पारंपरिक ज्ञान को एक्यूरेट, सटीक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से सम्मिलित करना है, आधुनिक ज्ञान के साथ समाहित इंक्लूजन करना है, और इसमें हमें ट्राइबल नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज, ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग, ऐसा नहीं है कि कोई किताब, मैंने कहा ना पुरातन को परोसना नहीं है, ये एक परंपरा है, सोच की परंपरा है, मेथोडोलॉजिकल, पेडागोजिकल, फिलोसॉफिकल बेसिस, इन सब को हमने पुनः जागृत करना, और आप और मैं जो है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। शोध और अनुसंधान, मैंने गोरे जी को कहा था, मैं मजाक नहीं कर रही थी, हमारे अनुसंधान की आवश्यकता है, ग्रंथ निर्माण की आवश्यकता है, अनुवाद की आवश्यकता है, टीका टिप्पणी की आवश्यकता है, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स बनाने की है, और बहुत सूक्ष्म रूप से पढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था ऋषियों के द्वारा, ये शायद कानिटकर जी के भाषण में मैंने सुना था कि ऋषियों की परंपरा है, ऋषि ही निर्वहन करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए तप चाहिए होगा। तप का मतलब डेडिकेटेड, फोकस्ड, डिलिजेंट वर्क ऑन दिस, वेदर इट इज इन लर्निंग, रीडिंग, लर्निंग, रिसर्च, टीचिंग। तो ये हमने करना है। तो ये जो है तप के द्वारा और ऋषित्व के द्वारा हम सब ने इस महायज्ञ में सम्मिलित होना है, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे निरंतर बढ़ती रहे। इसके लिए मैं पुनः जो है आप सबको, जो आयोजक हैं, उनको बधाई देती हूँ। I would really like to congratulate the organizers for having done a wonderful job. Number one, in choosing such a great topic. Like I said, the very, the choice of the word Renaissance is very wonderful because पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पुनर्जागरण सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रयास कर दिया है, अब जो रहता है वो है कि आप और मैं इस पुनर्जागरण के यज्ञ में कैसे सम्मिलित हो, चाहे हम प्रिंसिपल हैं, चाहे हम वाइस चांसलर्स हैं, या हम मात्र बीए या बीएससी के छात्र हैं, प्रत्येक का सम्मिलित होना आवश्यक है। शुभकामनाओं सहित मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। I feel honored to have been here. It was it's happy to have discussed this. So thank you to the organizers, to the principal, and my greetings once again to the respected keynote speaker, Professor Jogendra Singh Bisenji. Thank you, Jyoti. Thank you, madam, for this very much enlightening and insightful speech. Comprehensive address, and very much blessed for your divine presence in this session. Thank you so much, ma'am. Honorable Professor Jogendra Singh Bisenji sir recently joined the session, so we are very much blessed, sir, to have you with us today. Now I'd like to introduce Professor Jogendra Singh Bisenji sir in a brief before his speech. Currently, he is serving as a Pro Vice Chancellor of Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University. Earlier, he worked as a professor of Hindi subject and as a principal in Dayanand College, Latur for 27 years, and also served as Vice Chancellor of Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded. He was honored with Chhatrapati Shivaji Maharaj Rashtriya Ekta Award of Maharashtra State Hindi Sahitya Academy by the state government
member of Sukarno Committee constituted by Government for Implementation of National Education Policy 2020. He is identified as an excellent administrator, teacher, eloquent speaker. He can be seen as a good example of how to devote one's life to a task after taking responsibility for it. He has authored many influential books, many research students for MPhil and PhD. He has been instrumental in research field and administrative work. We are deeply honored to have with us today, sir. It is an immense pleasure and privilege to invite Pro Vice Chancellor, Professor Jogendra Singh Bising, sir. हाँ, नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आयोजित इस संगोष्ठी में बेकर जी ने आमंत्रित किया बीज भाषण हेतु, इसलिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस संगोष्ठी में सम्मिलित सभी संसाधन महानुभाव, अभी बहुत अच्छा उद्घाटक मंतव्य उपाध्याय मैडम जी ने यहाँ दिया। मैं उनसे भी क्षमा चाहूँगा क्योंकि उन्हें अपनी बात को जल्दी समाप्त करनी पड़ी, लेकिन मुझे राजभवन पहुँचना है, इसलिए अभी तो यात्रा में ही हूँ मैं, तो कुछ बातें आपसे यहाँ पर मैं करने का प्रयास करूँगा। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि केवल हमें हमारे पुरखों का गुणगान करना है, केवल गुणगान करना नहीं है, बल्कि उस अतीत के गर्भ में छिपे हुए उन सारे रहस्यों को समझना, उस ज्ञान को समझना, उस धरोहर को समझना और उसके माध्यम से उस परंपरा को आगे बढ़ाते, उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक सफल जीवन का और सफल समाज का निर्माण करना, ये हमारा दायित्व है। अभी मैसेज डाला है कि आप वीडियो चालू करें, लेकिन मैं यात्रा में जिस स्थिति में हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आपसे क्षमा चाहता हूं। अब विषय ये आता है कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा, जहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा का जिक्र है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दो बिंदुओं को यहां समझना जरूरी है, जो मूल आधार स्तंभ जो है, एक है भारत केंद्रित ये शिक्षा नीति है और दूसरा बिंदु है ये विद्यार्थी केंद्रित है। तो विद्यार्थी केंद्र की बात तो अभी मैं नहीं करूंगा, तो भारत केंद्रित है, तो भारत को केंद्र में रखकर सारी बातें कही गई है। तो भारत को केंद्र में रखकर भारत की शिक्षा किस प्रकार की थी? तो मित्रों, यह देश कभी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं था। हम हिंदी के अध्यापक हैं, हम जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा कि शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। जगत को आचार, विचार, व्यापार, व्यवहार, विज्ञान देने वाला यह राष्ट्र रहा। जगत का पहला ग्रंथ इस देश में लिखा गया ऋग्वेद। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति रही कि इस देश में काफी आक्रमण है, जिसका जिक्र अभी उद्घाटन के मंतव्य में उपाध्याय मैडम जी ने किया। इन आक्रांताओं ने इस देश की परंपरा संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया, और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ा आघात जो हुआ वो ब्रिटिशों के द्वारा हुआ। ब्रिटिशों ने क्या आघात किया? ब्रिटिशों ने यह समझाने का प्रयास किया कि आप पिछड़े हुए थे, आपके पास में ज्ञान नहीं था, आप जंगली वनवासी थे, वनों में निवास करते थे। इस प्रकार का भ्रम हमारे मन में उत्पन्न किया। सबसे महत्वपूर्ण क्या काम किया? तो हमारी स्वचेतना को नष्ट करने का, हमारी अस्मिता को नष्ट करने का काम ब्रिटिशों ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी उसी अस्मिता को स्थापन करना, पुनर्स्थापना की जो बात यहां पर अभी मैडम ने की, वो बात वही है कि हमारे पास में जो था उसे पुनः एक बार स्थापित करना है, जो जगत के कल्याण की बात करता है। तो क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं? इसमें बात ये आती है, सबसे बड़ी बात, कि जीवन के सारे क्षेत्र आपको मिलेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में। यहाँ का यहाँ की शिक्षा किस प्रकार की, यहाँ की पेंटिंग्स किस प्रकार की रही, यहाँ का योगा किस प्रकार का रहा, यहाँ का आयुर्वेद किस प्रकार का रहा, यहाँ के विज्ञान की परंपरा में यहाँ का गणित किस प्रकार का रहा, यहाँ का खगोल शास्त्र किस प्रकार का था, यहाँ का संगीत किस प्रकार का रहा, यहाँ की किसानी किस प्रकार की चली, यहाँ का जल व्यवस्थापन किस प्रकार का था, यहाँ की नृत्य कलाएं किस प्रकार की थी। सारे क्षेत्र जीवन के हमको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे।
तो जब भारत की बात आती है तो हमको ये भी समझना चाहिए कि वर्तमान का जो राजनीतिक भारत का मानचित्र है, मैं उस भारत की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा में अभिप्रेत भारत कौन सा है? तो भारतीय ज्ञान परंपरा में अभिप्रेत भारत, जिसको हम अखंड भारत कहेंगे, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में आता है कि उत्तरीय समुद्र से हिमादृष्टि व दक्षिणम वर्षत भारतम नाम भारतीय संतति। ये विशाल बृहत भारत मतलब अफगानिस्तान से लेकर इधर पूर्वांचल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ऐसा विस्तृत ये जो फैला हुआ क्षेत्र है, ये भारत। इस भारत की ज्ञान परंपरा को हमें समझने का कारण यह है कि यदि हम प्राचीन व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण की बात, जिसे हम पाणिनि कहते हैं आद्य व्याकरणकार, यदि व्याकरण समझने की हम बात करते हैं तो व्याकरण जहां पर समझने की प्रयास करेंगे और पाणिनि का व्याकरण हम देखने जाएंगे तो पाणिनि का जन्म स्थान है पेशावर, जो पेशावर आज हमारे पास में नहीं है। इस देश का एक बड़ा विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला, यह तक्षशिला आज हमारे पास नहीं है। यदि गांधार की बात करना चाहेंगे तो जहां से गांधारी थी, तो गांधार आज हमारे पास नहीं है, जो आज कंदहार बन गया है। तो इसलिए यह बृहत भारत, उसको भी हम समझने का प्रयास करें। मेरी और दायित्व बीज भाषण का है, इसलिए मैं बिंदु रूप में केवल आपके सामने सारे विषय यहां पर रखने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इतनी विशाल ज्ञान परंपरा खंडित क्यों हुई? तो जैसे ब्रिटिशों ने इसको समाप्त किया। मैं महात्मा गांधी का एक वाक्य यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के सामने एक लंदन में भाषण किया और उस भाषण में महात्मा गांधी ने कहा कि यू पीपल आर डिस्ट्रॉयड ए ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। आप लोगों ने भारत का ज्ञान का एक समृद्ध वृक्ष, विशाल वृक्ष आपने नष्ट कर दिया। अब ये विशाल वृक्ष किस प्रकार का है, ये सारी चीजें हम भारतीय ज्ञान परंपरा में समझने का प्रयास करेंगे। इस देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, वैशाली है, विक्रमशिला है, ऐसे पता नहीं कितने सारे विश्वविद्यालय थे कि जिन विश्वविद्यालयों में न केवल इस देश के बल्कि विदेशों से भी हजारों छात्र ज्ञान सीखने के लिए आते थे। उस ज्ञान के यज्ञ में, उस विश्वविद्यालय में समग्र ज्ञान शाखाओं का एकत्रित अध्ययन जिन विश्वविद्यालयों में होता था। हमारे पास में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, जिस गुरुकुल में छात्र 12 वर्ष अपने गुरु के घर रहता और सारा ज्ञान वहां पर सीखता। तो हमारे पास ज्ञान की परंपरा इस प्रकार की रही कि उसकी आत्म चेतना को जागृत करे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य में जो मूलता है उसको जागृत करना, उसको जगाना, यह ज्ञान या शिक्षा की पद्धति है। अभी हमारे पास विज्ञान, हमारे पास ये परंपरा शुरू हुई कि केवल व्यक्ति को बताना है, देना है, जानकारी देना है और जानकारी देकर उसके माध्यम से जानकारी देना और उस जानकारी के माध्यम से उस बात को आगे बढ़ाना। केवल इंफॉर्मेशन देना यह शिक्षा नहीं है। इंफॉर्मेशन देना मात्र शिक्षा नहीं, बल्कि उसकी बताना ही शिक्षा पद्धति से देश में रही। उस बात को भी समग्र रूप से आजकल क्या हुआ कि केवल पढ़े, साइंस में फील्ड पढ़ रहे तो एक सी पढ़े, बाकी ज्ञान शाखाओं को शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं रही। जब आर्यभट्ट को केवल का शिक्षक नहीं कहा जाएगा, आर्यभट्ट गणित का भी की जानकारी रखते थे, ज्योतिष शास्त्र भी जानते थे, खगोल विज्ञान भी वो जानते थे, मतलब ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का भी उन्हें ज्ञान था। शिक्षक समग्र ज्ञान शाखाओं के संबंध में कुछ ना कुछ जानकारी अपने पास में रखता था। इस प्रकार की समग्र शिक्षा पद्धति, होलिस्टिक ज्ञान देने की पद्धति हमारे पास में थी। इसलिए भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत अभी आ गया है कि जहां पर आप मल्टी डिसिप्लिनरी जिसे कहा जाएगा कि विभिन्न ज्ञान शाखाओं का इकट्ठा आपको अध्ययन करना है, यह एकीकृत ज्ञान दिया जाता था। और इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण है जो वो एक्सपीरियंशियल अनुभूति जन्य अनुभवात्मक ज्ञान देने की पद्धति हमारे देश में रही, जिसको भी अभी भारतीय ज्ञान परंपरा में और भारतीय
है कि छात्र को माध्यम मित्रों, ये परंपरा जो हम कहते हैं कि चिंतन करें, पाश्चात्य राष्ट्रों में कितना अनुसंधान, अधिकतम अनुसंधान 15वीं शताब्दी के बाद ही क्यों हुआ? 18वीं शताब्दी के बाद में ऐसे कोई जगत को डालने ऐसे कार्य क्यों नहीं हो पाए? आज वर्तमान में हम देखते हैं कि विदेशी आते हैं अजंता हमारे के लिए ये तो चित्र ये सारी पद्धति जो थी वह 18वीं शताब्दी के बाद भारत में क्यों नहीं, और जो विदेशियों में जो हुआ अनुसंधान 15वीं शताब्दी के बाद है कि भारत से ये सारी पद्धति विदेश में गई या वो विदेशी ले गए, उन्होंने अनुसंधान किया, उसके संबंध में उन्होंने भारत जगत को ने दिया, तब जाकर दुनिया को गिनती आई और भारत से अरब राष्ट्र में गया और अरब से यूरोपियन कंट्री में गया, इस प्रकार यहाँ पर रही। तो सब वो छात्र वो सारा ज्ञान प्राप्त करें कि इस ज्ञान को, इस विद्या को समझने का हम प्रयास करें, इसे भी सीखना है, हमारे चेतना को जगाना है। कहाँ तो ग्रंथ के रूप में ढूंढना है, फिर कह रहा हूं कि बीज वक्ता के रूप में। ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा भगवत गीता में, ये सारा ज्ञान मिलेगा आपको हमारे 4 वेद 13 उपनिषदों में, सारा ज्ञान जहां आपको मिलेगा। इसके अलावा ये उपनिषदों के अलावा 18 पुराण हैं, 18 स्मृति ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है। इसके अतिरिक्त हमारे दर्शन ग्रंथ है। दर्शन ग्रंथों में जहां पर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन के अलावा नास्तिक दर्शन जिसमें आप जैन, बौद्ध और चारवाक को भी हम देख सकते हैं, ये सारा ज्ञान वहां पर संचित है। ये सारा ज्ञान जिन भाषाओं में संकलित है वो भाषा है संस्कृत है, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं जिसमें पाली है, जैनियों का ज्ञान सारा अर्धमागधी द्वारा जहां पर प्रस्तुत किया गया। कुछ मात्र उदाहरण देकर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूं, क्योंकि समस्या सभी के लिए वहां पर दिखाई दे रही है। मित्रों, जगत को जल व्यवस्थापन जिस प्रकार का हमने दिया है, तो इस जल व्यवस्थापन की बात करते हैं तो आजकल हम कुछ डैम बनाते हैं, तो डैम कुछ वर्षों के बाद यह ज्ञान हमारे द्वारा, जैसे मैंने कहा कि जल व्यवस्थापन की बात करें कि आज कुछ डैम बनते हैं तो कुछ वर्षों के बाद मिट्टी से भर जाते हैं, लेकिन इस देश में आज से 1800 वर्ष पहले एक डैम बना, जो त्रिची के पास में बना हुआ डैम है, कलनई बांध डैम। यह चोल राजा ने बनाया। मित्रों, 1800 वर्षों के बाद भी आज वो डैम उसी प्रकार से पूरी क्षमता के साथ में बहता है। यह डैम जगत का पहला डैम माना जाएगा। मित्रों, जिस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हमने किया, शिल्प का निर्माण किया, हम महाराष्ट्र में हैं, मराठवाड़ा में है, तो आपके पास की बात कहता हूं कि आपके बगल में एक जिला आता है परभणी में एक तहसील है जिंतूर, जिसका पुराना नाम जैनपुर है। तो इस जैनपुर मतलब जिंतूर में जैनियों की गुफाएं हैं। उसमें एक गुफा आपको उसमें भीतर प्रवेश करना है तो मात्र द्वार उसका 2 बाय 2 का द्वार है, और आप भीतर जाएंगे तो लगभग भीतर 6000 किलो की 6 टन की काले पाषाण की एक मूर्ति जहां पर रखी है भगवान महावीर की। आप उस मूर्ति को यदि देखेंगे तो 2-3 प्रश्न सामने आते हैं कि 2 फीट का केवल द्वार है और भीतर इतनी बड़ी मूर्ति कैसे गई। सारा पहाड़ लाल पत्थर का है, काला पाषाण कहाँ से आया। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि हमारे विज्ञान की जानकारी का, हमारे पुरखों का ज्ञान
यह 6000 किलो वजन की मूर्ति जमीन से बिल्कुल अधर है, जमीन पर स्थिर नहीं है, हवा में है। उसके मूर्ति के पीछे आप जाइए, पीछे तौलिया बिछाइए और मूर्ति के नीचे से तौलिया को खींचिए, तौलिया एक छोर से दूसरे छोर में निकल जाएगा। ऐसे पता नहीं कितने कितने दुनिया को आश्चर्य में डालने वाले ज्ञान की बातें हमारे पास में मिलेगी। अंतिम एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। यह सारा ज्ञान हमने जगत को दिया, जगत के विभिन्न राष्ट्रों तक हमारी संस्कृति फैली और इस संस्कृति ने जगत को क्या दिया, तो मानव कल्याण की बात भारतीय ज्ञान परंपरा ने दी। भारतीय ज्ञान परंपरा ने कहा कि आनो भद्रा क्रतवयो यंतु विश्वता, जगत का सब मंगल ज्ञान हमारी ओर आए। भारतीय ज्ञान परंपरा ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। भारतीय ज्ञान परंपरा ने एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की बात कही। भारतीय ज्ञान परंपरा ने कहा कि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। भारतीय परंपरा ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की बात कही कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ साक्षात परमात्मा होते हैं। वर्तमान में देश में जिस प्रकार के महिला अत्याचार की घटनाएं दिखाई दे रही है, तो यह चिंतन की आवश्यकता है कि जो देश नारी को ईश्वर के समान मानता था, वह उसी देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। रुचिनाम वैचित्र्या नाना कुटिला नाम पथजुषा, इस प्रकार की बात शिव महिम सूत्र में कही गई है। ये बात ये कहता है कि आज धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस प्रकार के विवाद चल रहे हैं, तो ये देश क्या कहता है। तो ये सारा ज्ञान हमारी परंपरा में हमें सीखने के लिए मिलेगा। मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से कि मैं अधिक समय आपको नहीं दे पाया और ठीक से बात भी नहीं कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभारी हैं आपके सर। भारतीय ज्ञान समग्र विश्लेषण आपने बहुत ही कम शब्दों में करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत आभार है सर आपके। नाउ आफ्टर दिस आवर बिलीव्ड प्रिंसिपल Professor N.G. Ambekar sir has joined the session. He is present here. Thank you so much, sir, for your precious time. I would like to invite our principal Ambekar sir for presidential speech. इस भारतीय ज्ञान परंपरा के राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित उद्घाटक माननीय दिव्या जोशी मैडम, बीज वक्ता हमारे गुरु श्रद्धेय बिसेन सर, जिन्होंने अपने सुबह की व्यस्तता में भी हमारे लिए समय निकाला। सर, आपके जितने भी शब्द है, मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सार आपने बताया है बहुत चंद शब्दों में, उसको विस्तृत सुनने की हमारी अपेक्षा है। इसके बाद संभव हुआ तो और भी हम आपसे निवेदन करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे। सर, आपने जो समय निकाला इसके लिए मैं महाविद्यालय की ओर से सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत ही व्यस्तता थी सर, आपने बहुत समय निकाला है। मुझे लगता है कि यही भारतीय ज्ञान परंपरा जो चली आ रही है उसी की एक कड़ी मैं समझता हूं कि व्यस्तता में भी हमें कुछ देने की जो आपकी इच्छा है, वही मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए फिर से एक बार मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज अभी इस सेमिनार में सभी उपस्थित जो है आयोजन कमेटी के सदस्य, सभी सहभागी भाई और बहनों, अब अध्यक्षीय समापन के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में जो दिव्या मैडम ने जो बात कही है, डॉक्टर बिसेन सर जी ने जो बात की है, ये सारी चीजें जो है आज हमें एक अध्यापक के रूप में नई पीढ़ी को पहुंचानी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नई शिक्षा नीति की ये हम पर आज आ पड़ी है, क्योंकि भारत प्राचीन कालखंड से एक गौरवशाली देश रहा है। उसका ज्ञान का भंडार, संस्कृति का भंडार, विज्ञान का भंडार यह संपन्न रहा है। लेकिन अभी जैसे सर ने बताया कि बीच में जो हमारी मानसिकता ये हुई है कि हमारी अस्मिता को सुलाया गया है जानबूझकर अंग्रेजों ने या विदेशी आक्रांताओं ने। तो इस ज्ञान के माध्यम से सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमारी जो अस्मिता है, जो भारतीयता है, ये भारतीयता कहीं न कहीं नई पीढ़ी में हमको जगानी है और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। मुझे लगता है इस संगोष्ठी के माध्यम से, इस राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से हम यह जो है अस्मिता जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्ञान
धरोहर, जो परंपराएं हैं हमारी, इन सभी का जो है हमें नई पीढ़ी में पहुंचाना है। सभी ये सारी चीजें जो सर ने बताई, हर क्षेत्र के बारे में जो हमारी जो प्रगति इसके पहले रही है, जो ज्ञान परंपरा संपन्न रही है, मुझे तो लगता है कि जल, थल, आकाश सभी के संदर्भ में, ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारत दुनिया में जो है सबसे प्रमुख राष्ट्र के रूप में रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आज के समय में ये जो हमारी संपन्नता है, ये जो हमारी वैज्ञानिकता है, और ये जो हमारी सारे ज्ञान की जो प्रासंगिकता है, ये सारी चीजें जो है हमें नई पीढ़ी में, नए भारत के लिए, ये सारी नई पीढ़ी में हमको इस सेमिनार के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में जो विषय हमारे लिए रखा गया है अध्यापकों के लिए और छात्रों के लिए, ये नए रूप से जो है इसको स्थापित करना है। मुझे लगता है कि इस बहाने हम सभी अध्यापक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य विषय है, जो भारतीयता को स्थापित करना है, फिर से भारतीयता को और भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया में स्थापित करने के लिए, मुझे लगता है कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी एक सहायक के रूप में सिद्ध होगी। इस अपेक्षा के साथ मैं अपने अध्यक्षीय मंतव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for this very much comprehensive presidential speech. And now I would like to request Ms. Guge Komal Madam, vote of thanks. Good afternoon, all. It is our pleasure to extend thanks to all the dignitaries, chief guests, and participants. Initially, I would like to express our heartfelt gratitude to our chairman, Honorable Principal Professor N.G. Emeka sir, for his precious address. Then I would like to thank the inaugurator, Honorable Dr. Divya Joshi Madam, Director UGC MMTC and Director of Placement Cell, Kumaon University, Nainital, for her enlightening address. My sincere thanks to Honorable Professor Jogendra Singh Bisen, Vice Chancellor, YCMOU Nashik, for his gracious presence and invaluable speech. We deeply appreciate the insights you shared with us. Thank you once again, Joshi ma'am, and to the organizing committee and the guest scholars and students. Thank you.